Hello everybody. In last lecture we learnt about Dobereiner triads and Newland law of octave. Now in this lecture we have to study about the Mendeleev's periodic table, most important question that always asked in state board. And the Mendeleev was the scientist who did the great contribution in finding the periodic table. हम Mendeleev's periodic table देखेंगे आज. तो हमको क्या पहला पॉइंट याद रखना है? मेंडेलीव, Dmitry Mendeleev. What is the name of the scientist? Dmitry Mendeleev. Okay. Developed the periodic table. He developed the periodic table on the basis of what? He developed periodic table. Great contribution of the scientist. Periodic table of elements. Okay. Dmitry Mendeleev. He developed the periodic table of elements. He classified the elements on the basis of increasing order of atomic masses. Okay, he also classified the elements on the basis of increasing order of atomic masses. Means again, which is the fundamental property according to Mendeleev's? Atomic masses were the fundamental property according to Mendeleev's. ठीक है, अब ये जो डिस्कवरी हुई थी, कब हुई थी ये? इन 1869 टू 1872. ठीक है, इसके बीच में आपको नंबर ऑफ बुक्स में अलग अलग वेरिएशन दिखाई देंगे. तो आपके स्टेट बोर्ड के बुक में ये वाला दिया हुआ है दैट Dmitry Mendeleev डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1869 टू 1872. इस ड्यूरेशन में ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है. ठीक है, सो ही कंसिडर्ड एटॉमिक मासेस वेयर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिम. सो ही अरेंज्ड हाउ मेनी एलिमेंट्स? ही अरेंज्ड 63 elements. At that time 63 elements were known, so he arranged 63 elements according to what? According to increasing order of atomic masses. ठीक है, according to increasing order of atomic masses. So how many elements were known at that time? 63 elements were known at that time. So he arranged 63 elements according to increasing order of their atomic masses. So again he organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of element. He organized the periodic table on the basis of what? On the basis of properties. Which properties? The chemical and physical properties of the elements. Okay, chemical and physical properties like melting point, boiling point, molecular masses, molecular formulas, hydrides, oxides formulas. So he classifies 63 elements on the increasing order of their atomic masses. Also he organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of elements. Okay, so next point that you have to remember, so in this periodic table जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, दैट वर्टिकल कॉलम्स, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं. ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स दैट आर कॉल्ड एज ग्रुप्स. और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, दैट हॉरिजॉन्टल रोज दैट वी विल कॉल्ड एज पीरियड्स. ओके, अगेन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वर्टिकल कॉलम दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल. जो वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं. ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगेन नेक्स्ट इज, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्टेटमेंट क्या था? इसने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज किया, 63 एलिमेंट्स को अरेंज किए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा पीरियोडिक टेबल बेस्ड है. सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ, what is the statement? Properties of elements, okay, are what? Are periodic function. Are what? Are periodic function of their atomic masses. Because that table was based on atomic masses, atomic mass was the fundamental property. So what is the statement? The properties of elements are periodic function of their atomic masses. This is the most important statement of periodic table, this Mendeleev's periodic table. Periodic function, periodic function means what? Which is repeated after a certain interval of time. तो जब हमें पूरा periodic table देखेंगे तब आप पढ़ेंगे कि जो properties जो हम देख रहे हैं वो properties क्या होती है? एक particular interval के बाद repeat होती है. So what is the statement? Statement is the properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. Okay, these are the points. The next point which is most important,
बहुत बार इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, दैट इज द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या क्या मेरिट्स हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, ये आपको याद रखने हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। ही क्लासिफाइड ऑल 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, बिकॉज जब ये थेरी हुई थी तब 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उसने पूरे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, सो सेकेंड पॉइंट क्या था कि ही करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को क्या किया, जो रॉन्ग थे उनको करेक्ट किया, किस लिए, सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल ही किसके ऊपर बेस्ड है, पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड है। अगर एटॉमिक मासेस अगर करेक्ट नहीं है तो पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ही करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास जो बेरिलियम का था पहले था 14.09, फिर इसने वापस रिवाइज किया, सो दैट विल बी 9.4। ठीक है, तो इसलिए बेरिलियम जो है वो 4th पोजिशन पे आता है बिफोर बोरॉन। थर्ड पॉइंट क्या था कि जब ये पीरियोडिक टेबल बना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था कि ही केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस। वह क्योंकि जब उस टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, जो लेटर ऑन डिस्कवर्ड हुए, उसके लिए उसने पहले से ही वैकेंट प्लेसेस बनाए ताकि ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो। सो ही केप्ट सम वैकेंट कैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को उसने प्रेडिक्ट किया था, लाइक इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो बाद में जब डिस्कवरी हुई तो ये 3 एलिमेंट कहलाए बाद में स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मानियम। तो इन जो वैकेंट प्लेसेस थी वहाँ पे ये इन्होंने ऑक्युपाई किया, ये गैप ऑक्युपाई की, और जो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज थी जो मेंडलीव्स ने प्रेडिक्ट की थी और जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज थी दे वेयर सिमिलर। ओके, सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोबल गैसेस जो थे, जिसको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये जो नोबल गैसेस थे इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे। सो नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर। सो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल तो बन गया था, नोबल गैसेस तो डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे, तो फिर उसने क्या किया, ही क्रिएटेड अ जीरो ग्रुप एलिमेंट। उसने एक अलग ग्रुप बनाया जिसको हम 18th ग्रुप पढ़ते हैं। ही क्रिएटेड अ जीरो ग्रुप एलिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल।